بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام، تاروں سے ہوں گے ہم کلام، شو ہے آپ کا اپنا، تاروں سے کرے باتیں۔ ناظرین، ہمارا آج سال 2021 کا پہلا شو ہے اور ہمارے ساتھ وہی مہمان موجود ہیں جو ہمارے ساتھ نیو ایئر نائٹ میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ ہیں سامیہ جی، ہمارے ساتھ ہیں معظم صاحب اور راویہ۔ اور ناظرین، آج بھی ہم ہمارے دوستوں سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نیا سال شروع ہوا ہے یہ ہماری ملک و قوم کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کہ کرونا کی صورتحال کیا رہے گی؟ 2020 میں تو سب نے بہت سفر کیا ہے، پوری دنیا نے بڑی تکلیف میں رہے ہیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کرونا کی سچویشن کیا ہوگی 2021 میں؟ آئی تھنک معظم بھی اس بات سے اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ اسٹرالوجی کا جو سال ہے وہ 22 یا 23 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اسٹرالوجی کا نیا سال۔ اچھا، اور جب 2020 کو پریڈکٹ کر رہے تھے مختلف چینلز کے اوپر، 19 والے سال سے شروع ہو گیا تھا، تو میں کہتی تھی کہ یہ والا سال جو ہے وار زون نظر آتا ہے، کیوس، افراتفری، اندھیرا۔ اچھا وہ کرونا نکل آیا، مجھے کرونا کا نام نہیں پتا تھا، یہ کریڈٹ میں نہیں لینا چاہوں گی۔ اب انشاءاللہ کیونکہ اور کرونا کا پہلا پیشنٹ بھی مارچ سے آیا تھا لاہور میں، تو جی انشاءاللہ اس مارچ کے لگ بھگ جو ہے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ڈیڈ لاک یہاں سے اوور ہونے جائے گا، کچھ زندگی تھوڑی سی بیک ٹو نارمل ہونی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرونا اور اس جیسی دیگر وباؤں سے ہماری ساری انسانیت کو اور ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ معظم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کرونا کے بعد جیسے اب انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ ٹرینوں پہ بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں، ایسے نئے وائرس پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب آگے کیا چیزیں دیکھنی ہیں؟ اور یہ بات یاد رہے کہ ابھی یہ کرونا ممالک میں جو اسپیشلی ویسٹ ہیں، جسے ہم گلف کہتے ہیں، USA ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، ناردرن ایسٹ ایریاز ہیں، ناردرن ایریاز میں آتا ہے یورپ اینڈ UK، اور ان میں ابھی یہ ختم نہیں ہونے والا، اس بات کو تو سمجھیں۔ مگر پاکستان کی جو پلانیٹری کنڈیشن ہے، پاکستان ڈبل اسٹینڈرڈ کے ساتھ اسٹرانگ ہے، تو اس لیے اگر پچھلی دیکھیں تو میں نے تب بھی کہا تھا یہ اگست میں چلا جائے گا، اگست میں چلا گیا، اور اس کے بعد جو آج لوگ اس وقت شور مچا رہے ہیں، شور ضرور مچا رہے ہیں، کیا اس طرح کا لاک ڈاؤن لگا جس طرح پہلے کے لگا ہوا تھا؟ جبکہ دوسری لہر لوگ کہتے ہیں زیادہ اسٹرانگ تھی، لوگ یہ کہہ رہے تھے، کیا ابھی تک ایسی کوئی کنڈیشنز ہیں؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بہت ہارمفل ہوگا۔ ہاں پاکستان قدرتی طور پر ایسے زون میں ہے، یا اب یہ کہہ دے کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ پاکستانیوں پر یہ افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ جو سارے میں نے ایریاز گنائے ہیں ان میں یہ پرابلم کریٹ کرے گا۔ دوسری بات، جوپیٹر ان ایکویریس ڈیلز ود نارتھ ایسٹ از جاپان، تو آئی تھنک کہ سونامی آنے یا اس طرف بھی ان کی چیزیں پھیلنے کے چانسز ہوں گے، تو اس لیے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک باقی جو ورلڈ ہے وہ اس سے ایک دفعہ جھوجے گی۔ اوئے ہوئے، اچھا۔ اور آپ کیا کہتی ہیں نابیہ جی؟ 2021 مارچ آن ورڈز مجھے کافی زیادہ ریکوری نظر آتی ہے پاکستان میں بھی اور آل اوور دا ورلڈ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ آؤٹ آف کنٹرول نظر نہیں آتا، ویکسین ویسٹرن کنٹریز میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ کینیڈا کے حالات اس وقت ذرا خراب ہیں، لیکن دے ہیو اسٹارٹیڈ دا ویکسین، اور مجھے لگتا ہے وہ کامیاب ویکسین رہے گی ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ امید ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ان کنٹرول آنی شروع ہو جائیں گی، ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں تو ہو ہی جائے گا، اور آل اوور دا ورلڈ مجھے ریکوری نظر آتی ہے، سنیماز میں، بزنسز میں، ریسٹورینٹس میں، اوور آل اکانومیز میں بھی۔ تو میرے خیال سے 2021 ایک بہت ہی تیز اور چینجز لے کے آئے گا آن ڈفرینٹ فرنٹس۔ تو یہ ایک تیزی کا سال ہے، ٹریولنگ کا جو خاص طور سے ایریا ہے، جو ایئر پلینز وغیرہ ہے ان کا بزنس بھی کافی اسٹرانگ نظر آتا ہے، اور لوگ جو پہلے ٹریول کرنا چاہ رہے تھے وہ مارچ اپریل کے بعد سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ٹریولنگ اچھی رہے گی۔ اب میں بھی ٹریولنگ کر سکوں گا؟ او انٹرنیشنل ٹریولنگ دی گل کر رہے ہیں تے تو ایتھوں نہ زیادہ تو زیادہ توپ سڑی جائیں گا۔ چل میں تے خود انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنا وا، ایتھوں فرانس تو یوکے تو مرید کے آخر تے تینوں کے تے مینوں کے در فٹے منہ تیری ٹریولنگ، ساری دنیا جہاز تے ٹریولنگ کر دی ہے، 3 ٹائراں والی گڈی تے بیٹھ کے کہندا یا اللہ یا اللہ۔ اچھا اس سال بھی سیم پیج قائم رہے گا یا خان صاحب اور اداروں کے درمیان چپکلش ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ والا جو ٹائم ہے، جو سال کا ابتدائیہ ہے، یہ تو ابھی حکومت وقت کے لیے سخت ہے تھوڑا سا، اور جس میں ظاہر چپکلش بڑھے گی، پھر مڈ میں سے جا کے یہ سیٹل ہونی شروع ہو جاتی ہے، عوام کا عدالتوں پہ اعتبار بڑھتا ہے وہاں سے، اور وہاں سے پھر ادارے جو ہیں اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے، لیکن ٹل دین چپکلش کے امکانات بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ ہوئے ہوئے، اور معظم صاحب ایسے جو یوں کر رہے ہیں اس میں کیا ٹینشن آئی ہے جو ہمیں بتائیے؟ پلانیٹری کنڈیشن جب ہم پاکستان کی دیکھتے ہیں نا، تو سیٹرن ان ایکویریس ود جوپیٹر، یہ ایڈمنسٹریشن کو ہٹا کر
जिस तरह पहले एडमिनिस्ट्रेशन का चेंजेस थे, अब एजुकेशन, लॉ और जुडिशरी इसके स्ट्रांग होने का टाइम है। आई डोंट थिंक कि इसमें इख्तलाफात इस सूरत तक चले जाएंगे, कोई बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। हाँ, ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को आप डिफरेंट एंगल से आप अप्लाई होता हुआ देखेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा और पाकिस्तान में जुडिशरी स्ट्रांग होगी। इदारे असर्ट करेंगे या खान साहब? नहीं, दोनों बिल्कुल जिस तरह पीछे चलते रहे ये इसी तरह ही चलते रहेंगे। मतलब सेम पेज कायम रहेगा? हाँ, अगर कोई इदारा उसको असर्ट करे इसके चांसेस कम है, खान साहब इसी तरह ही चलते रहेंगे। मैं लगता सितारे भी खान साहब के एहतसाब तो डरते ने, क्योंकि वो भी उस हिसाब नाल जा रहे ने जिस हिसाब नाल खान साहब चाहुंदे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤਬਸਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। राबिया जी, आप क्या कहेंगी? 2021 में सेम पेज रहेगा या फिर चपकलिश होंगी? सेम पेज बरकरार रहता हुआ दिख रहा है और इमरान खान जो है वो इदारों के ऊपर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कोशिश करेंगे, और ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको एक स्ट्रगल की फीलिंग तो है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इदारों के ऊपर असर्ट कर सकें और उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकें। और ऐसा लगता है कि वो कर पाएंगे। लो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੂਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲਿਖ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਸੇ ਚੂਪ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਤੋਂ ਗੰਜ ਕੱਢਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੈ। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। नया साल मुबारक। अच्छा, ये बताइए आने वाले साल में मुल्क की इकोनॉमी कैसी रहेगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ਉਹ ਫੌਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। आप ही के लिए रिलीफ की खबर है फिजा जी, क्योंकि 2019 और 2020 मुझे याद है कि मैं एक ही बात कहती थी, शदीद मौशी बहरान होगा, दुआ करें कि मुल्क खड़ा रहने के काबिल रह जाए। अल्लाह ने इस मुल्क पे करम किया, जो अब हम जिस वक्त में दाखिल हो रहे हैं, ये जो नई सफबंदियाँ होने जा रही हैं, जो हमारे नए इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, ये हमारे मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। तो जो लोगों को पिछले साल एक रोशन पाकिस्तान नज़र आता था, मेरे रब ने चाहा वो इस साल मई और मार्च, बल्कि मार्च और मई से शुरू होने वाला जो टाइम है, ये पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आने से इकॉनमी सर्वाइव भी करेगी, बेहतर भी होगी। अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, वरना इस हुकूमत तो सानू कोई उम्मीद नहीं। कहते सी केकड़े जो तेल निकलेगा, केकड़े जो तो तेल निकला नहीं, 2.25 साल ने साडा तेल कटता उन्होंने। तू तेल किते सिर ते लाया होंदा, तेरा ए हाल होंदा। कलर वाली बंजर जमीन वर्गा सिर है तेरा। बेटे नु क्या मौकी ले समझ ते गया ही होएगा। 2021 जो है ये पाकिस्तान में ग्रेजुअल डेवलपमेंट का टाइम होगा। आई थिंक जो मिड होगा, मिड के बाद से पाकिस्तान रिलीफ की तरफ चलना शुरू होगा। डिफरेंट कोलैबोरेशंस होंगी, वो तो पहले भी हो रही हैं, मगर इनके तो जो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। हाँ, असरात जो नजर आ रहे हैं ग्रेजुअली कोलैबोरेशन के साथ असरात बेहतरी की तरफ बढ़ पड़ेंगे। अरे वाह। इसलिए मैं कहता हूँ 2021 जो होगा इसका एंड जो है, जिस तरह अभी 2020 के एंड में थोड़ी सी बेहतरी आई, 2021 का एंड जो होगा वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी नाइस। और राबिया जी क्या कहेंगी? 2021 एड अप होता है नंबर 5 पे, और नंबर 5 जो है इट्स अ नंबर ऑफ मर्क्यूरी प्लैनेट विच इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। तो उम्मीद ये है कि चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन इकॉनमी के अंदर गिवन कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से बेहतरी थोड़ी सी नज़र आती है, पर स्ट्रगल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए है। पर एट द सेम टाइम ये एक बेहतर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जनरल ओवरऑल। फिजा मैंने 2 लाख रुपया दे, मई तो बाद ले। मई के बाद कहाँ से दोगे? बस सुन नहीं रही, बोली है और कह नहीं रही कि मई तो बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। ओए मुल्क दे हालात अच्छे होंगे, तेरा यही बेड़ा गर्क रहना है। अपनी जबान का ना मनूस रख ले। सही कह रही है बाबा, घर तो अपने चला नहीं सकता, मुल्क कैसे चलाएगा? ए घर चला सकता है ना मुल्क चला सकता है, इत्थे बह के सिर्फ जुबान चला सकता है। तुसा दोवां कुड़ियां ने मेरा कॉन्फिडेंस लूज किया, हालांकि पिंड च सारी दुनिया मैं उन्हें स्कॉलर कहती। हाँ, तो किसने कहा था पंचायत में फैसले करने के टाइम पर अपनी सांस रोक के खड़े हो जाओ ताकि स्मार्ट दिखो, फैसले कम करो, स्मार्ट दिखाते रहो खुद को। यूं दी रहो, मनु उम्मीद नहीं।
और स्पोर्ट्स के हवाले से आने वाला साल कैसा रहेगा सामिया जी? ये वाला साल जो है ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरों का साल है। वो जो भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट के अलावा, हम लोग तो सिर्फ क्रिकेट को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, वो जो भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हैं, इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रोथ उसको आएगी, क्योंकि ये इसमें ये वाला साल जो है ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साल है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਣਾ। मौला जट को डंडा तो है, टंड तेरी गुल्ली बन जाएगी। देखिए बाबास तब्दीली का साल है, ठीक है ना, और वो जो तब्दीली का वादा हमसे किया जाता था वो तो पूरा नहीं हुआ। अब रब की तरफ से जो तब्दीली आ रही है, मज़ा लीजिए आप भी। ਉਹ ਤੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੇਮ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। आप बताइए स्पोर्ट्स के ये है हवाले कि से। जो ये साल होगा इसमें स्पोर्ट्स तो कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी जिसे हम कहते हैं एलिवेशन की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन फिर जिसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग एंड एक्सकर्शन, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी पाकिस्तान में। अगर आप उसको स्पोर्ट्स का नाम दे रहे हैं तो इस एंड पे हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतरी हो जाएंगी। वीज़ाज़ के लिए आसानी हो जाएंगी, ट्रैवलिंग के लिए नए रूल्स, नए रेगुलेशंस निकलेंगी, नई डेस्टिनेशंस निकलेंगी, नए स्पॉट मिलेंगे, आपको दूसरे ममालिक में जाने के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। 2021 ट्रैवलिंग और इनसे रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बहुत बेहतर है। राबिया जी आप क्या कहेंगी स्पोर्ट्स के हवाले से? स्पोर्ट्स के लिए आई एम श्योर कि पाकिस्तान के लिए इस साल बेहतर साल होना चाहिए इन डिफरेंट फ्रंट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें हॉकी भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, और ज़्यादा स्पोर्ट्स नज़र आते हैं मुझे। तो मेरे ख्याल से ये एक्टिव साल नज़र आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए। और ट्रैवलिंग के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि ये साल एक काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए ट्रैवल का जो एरिया है वो खुल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा एयरप्लेन्स और ट्रेन्स और उनको फ़ायदा होगा जो कंपनीज हैं एयरप्लेन्स की। ਰਾਏ ਬੇਟੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। मैं बच्चों की तरह बोल रही हूँ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਆ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। बस यही रह गया ज़िंदगी में करने के लिए। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾऊं ਕਿ ਨਾ ਜਾऊं। ਉਹ ਸਦਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं 6 महीने बाद कल गया था तो बच्चे इसको अब्बा के बजाय ताया अब्बा कहते रहे। ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੈਸਟ ਐਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸਟ ਅੱਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ। अच्छा ये बताइए मीडिया के लिए ये साल कैसा रहेगा? खुशखबरी आप लोगों के लिए, पाकिस्तान भी बहुत डिजिटल होने जा रहा है, आवाम और मज़ीद डिजिटल होने जा रही है, और मीडिया की हाइप अब बनेगी। क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगी कि पिछले 2 सालों में उम्मीदें थी मीडिया पे पाबंदियां लग सकती हैं, मीडिया के हालात बुरे हो सकते हैं, क्योंकि पेश गोइयाँ ऑन एयर है, मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती। ये वाला साल जो है मीडिया की हाइप का साल होगा इंशाल्लाह, और यहाँ तक कि कोई अच्छी फिल्में, अच्छे ड्रामे यहाँ से बनेंगे जो कि एक अच्छा नाम पैदा होगा। तो 2000 ये रेवोल्यूशन भी का क्रेडिट इस 21 वाले साल को ही जाएगा। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, 2021, 2022, 2023 बहुक्म खुदा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट पे फ़ख्र होगा। अरे वाह। और मौसम साहब क्या कहेंगे? देखिए मीडिया के लिए तो डेफिनेटली बेहतर टाइम है। जिस तरह मैंने पहले कहा, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं, नए चैनल्स आ सकते हैं, मीडिया हर हाल में ग्रो करेगा ही। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो साल मुझे लगता है ये एजुकेशनल ग्राफ, जिसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कंसल्टेंसी है, वर्बल एक्सप्रेशन है, मीडिया है, काउंसलिंग है, बिल्कुल इन सब के लिए ग्रेजुअली बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। और आई थिंक कि यहाँ से एक एजुकेशन का भी, लर्निंग का भी एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और आप सब देखेंगे जो हम बहुत सारे सालों में, 70 सालों में नहीं कर सके हैं, वो इस साल से कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ नई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस पाकिस्तान में पढ़ानी शुरू हो जाए और उनका बेहतर हो जाएगा। और राबिया जी ओवर टू यू। So again 2021 adds up to 5 which is Mercury planet। तो Mercury जो है वो कम्युनिकेशन का ही प्लानट होता है। तो ये साल मीडिया के लिए, आपके लिए, एंकर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा साल होना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी जो प्रोफेशन है वो एंकरिंग से या बात करने से, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, अखबार वालों के लिए, राइटर्स के लिए इट शुड बी अ ग्रेट ईयर। ये तो क्लियर सी बात है। और गुड न्यूज़ फिल्म हैं? ये तेरे अंदर कौन सी एंकर पैदा हो गई? उन्हें ये मेरी नकल कर रहे हैं। मैं तुम्हारी नकल नहीं कर रहा, तुम मेरी नकल कर रही हो। आई डोंट लाइक यू। I like you. But I don't. I love you. I don't. Thank you. ਸਾਡੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ।
वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। नया साल मुबारक। अच्छा, थोड़ा फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो अब साल आएगा, इसमें पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के नेबर्स, उनके हवाले से ये साल कैसा जाएगा, और इस खत्ते के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो कोई ऐसी कोई बड़ी जंग तो नहीं दिखाई दे रही, कोई बुरा टाइम तो नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, ये सवाल आज के प्रोग्राम पे सब सवालों पे भारी है। वो ऐसे कि क्योंकि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया है, नई सफ़ बंदियाँ, नए अलाइंसेस, नए इत्तेहादी, ये सब कुछ सिस्टम, ये सब कुछ इस तरह ये चीज़ों ने प्लान होना है। तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये नहीं कि वो शरारतें नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करें ये मेरी खुशफहमी नहीं है, मुंह की खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो अलाइज हैं वो इतना सॉलिड होंगे। चाइना, टर्की, मलेशिया, ये पाकिस्तान के जो है ना अलाइंस की तरफ आते हैं ये ममालिक जो हैं। जो मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं हमसाया मुल्क के एस्ट्रोलॉजिस्ट की पेश गोइयाँ, और मुझे लगता था जैसे प्लांटेड बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त आ गया है। ये वो था जब बलोचिस्तान वो जो अलहदा हुआ था बांग्लादेश, ये वही वक्त है, अब इनका बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा। अल्लाह उनके मुंह में खाक, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान का रकबा बढ़ेगा। और जो सबसे 2021 की जो गुड न्यूज़ होएगी, जो इन्हीं चीज़ों के नतीजे में कश्मीर का फैसला जो है ना वो होता हुआ नज़र आता है, कश्मीरियों को रिलीफ की खबर मिलती हुई नज़र आती है। तो पाकिस्तान का रकबा मुझे बढ़ने के इम्कानात लग रहे हैं इंशाअल्लाह। और मौजम साहब क्या कहेंगे? हाँ देखिए, जब हम इसको ऐसे क्वेश्चन ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मंडेन का मतलब इलाकाई। सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में आया था तो मैंने तब कहा था कि ये जो गल्फ वाला सारा एरिया है इसकी रजीम चेंज हो जाएगी, सेटअप चेंज हो जाएगा, और ये लोग एक नई सफ़बंदियाँ करेंगे। और सब ने ये कहा था, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत शोर मचाया था कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाएगी। तो मैंने तब भी कहा था कि कोई जंग के आसार नहीं है। ये बात याद रहे कि जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम प्लैनेट से पढ़ते हैं। सैटर्न इज़ गल्फ। अब सैटर्न जो गल्फ है उसके बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ भी आकर मिलेंगे। अगर आप देखें, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, रशिया, ये सारा वो सारा एरिया है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में आएंगे। चाइना इज़ नॉर्थ विच इज़ मर्करी, चाइना पाकिस्तान के साथ होगा, देन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा एरिया, और देन श्रीलंका। ये सारा गोल्डन रिंग जो बनेगा ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अब मुझे लगता है ये जो भी नेक्स्ट ईयर है ये इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अगर इंडिया कोई फरवरी में कोई सर्जिकल स्ट्राइक या जिस तरह का पहले ड्रामा उन्होंने किया था, जिसे हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग जो है ऑपरेशन करने की अगर कोशिश करता है, रिजल्ट वुड बी द सेम। जिस तरह का टी इज़ वेरी फैंटास्टिक सर, आई थिंक यू विल हियर दैट सेंटेंस अगेन। नासा पढ़ देंगे, छड़ांगे नहीं। ओए अपने टिंड ना करवा बैठी किसे कोलों। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੂਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ? मैं क्यों होगा, मैं मोदी का सौरा हूँ। अच्छा, ये भी बात याद रहे 2021 में जो ऊपर वाली रियासतें हैं जिन्हें चिकन नेक कहा जाता है, मिज़ोरम है, ये जो सारा वो वाला एरिया है, ये 2021 में इंडिया से कट जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस वक्त चाइनीज़ जो है वो बहुत आगे तक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक वो अंदर आ चुके हैं, और ये उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर उन्होंने सके। चारों तरफ से घेर लिया है। लद्दाख इज गोइंग टू बी डिफरेंट पार्ट। राबी, आप क्या कहेंगी? साइकिकली या इंटुइटिवली पाकिस्तान के और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में कोई ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आते। मुझे कोई जंग नज़र नहीं आती, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच नज़र नहीं आती। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे लगता है कि ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश या एफ़र्ट्स उस तरफ, उस एरिया की तरफ नज़र आते हैं। पर इंडिया इज़ वेरी स्टेगनेंट। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ख़ास चेंजेस हैं, या कोई दोस्ती की उम्मीद या कोई मेजर झगड़े की उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही। बस ठीक ही है, जैसे चलेगा वैसे ही है। साडे नाल गल्लां नूं को साडे बारे भी पुछ दसो जी, इस साल साडे वास्ते कोई दाल रोटी सस्ती होएगी कि नहीं? रब ने चाहा ए तुहाडा साल है, अवाम दा साल है। कोई सेकंड हैंड बाबी मेरे हाथ आएगी कि नहीं? बाबास, अगर तब्दीली का साल है तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ सकती? माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, इतने प्यारे हैं, क्यों उम्मीद खोते हैं आप? हले तिकर अपने विआह दे चक्रां च पे है।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, तू हले तक ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं कीता। नहीं, उसकी फिक्र की थी, उसके रिश्ते के लिए देखने जाता था लड़कियां। जिस लड़की के घर देखने गया, जिसको बेटे ने पसंद कर लिया, उसकी माँ से ब्याह करके भाभी बना ली। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਖਾਮਿਆਜ਼ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਿਆਕੂ ਬਾਟਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਡਾਲਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਲਿਆਕੂ ਬਾਟੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਹਵਾਲਾਤ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। छितर मैनू पे ने वाल बाबे ते झड़ गए ने। ये हमारा बाबा है ही नैश। इसको कहीं पे भी जाना होता है ना तो उस पते का एड्रेस लिखकर पर्ची में अपनी जेब में डाल लेता है और सड़क पे कहीं बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर लोग 1122 को कॉल करके इसको जहाँ पर जाना होता है उस पते को देख के पहुँचा देते हैं। अब तुम तो ना कहो, तुम्हें तो मिलने जाना होता है। बाबा तेरे वर्गे बाबे के लिए ये गाना बना है। कुंडी ना खटका बाबया सीधा चंडा खा, जबना ना मार फिजा सीधा गाना गा। आज तो डॉल लग रही है, बटन दबाइए तो यही डॉल करनी वेलकम वेलकम वेलकम। ए मौला जट वर्गे भी चाइना दे डड्डू होंदे ने, दबाओ ते कहंदे वाह 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 वाह। बाबा दोबारा कीजिएगा। क्यों? मैंने बस नस्ल चेक करनी है। डड्डू दी ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡੱਡੂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਡੱਡੂ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜਦੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ। इधर ते वे गुलाब जी आए ने। ये गुलाब है ते असी गमले हैं। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਟਰ ਹੈ। और तू खाद है खाद। गुलाब जी एवं नहीं आए, मेरी ट्रैक्शन खिंच के ले आई है ना। हाँ जी, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट भी पहना है, गमला ही लग रहे हैं आपको। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ काले। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ 25 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁੱਟਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਮਿਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨਿਮਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਨਿਮਰਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਮੀਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਲ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਲੰਡਨ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਓ ਜਾਂ ਲਿਆਏ ਜਾਓ, ਆਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ। कोई पता नहीं, किसी दिन आप जो है बाजा बजवा दें जिंदगी का। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਗੈਪ ਦਾ ਇਲਮ ਜੀ। ਬੋਲਾ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਸਮ ਦਵਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਜਿਆ ਲੈ। ਸਾਮਿਆ ਜੀ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ। नाच रहा रवाजे वाली साउंड दे। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇੜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖ ਮੌਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। देखो ना राबिया सैयद भी आई है। जी राबिया जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप मैं कैसा लगता हूँ आपको? जबरदस्त, हैंडसम। थैंक यू, मेहरबानी। कुड़ी अन्नी है हैंडसम। जिड्डी सोहनी नी ह्यूमन है ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾਵੇਗੀ। एस्ट्रोलॉजिस्ट, आपके सितारे कहाँ हैं इस वक्त? कुछ अगर गर्दिश इससे में, ब्याह हो जाए तो? कुछ गर्दिश में लग रहे हैं। गर्दश नहीं, चिक्कड़ च फंसे हैं। तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की मजीद बेइज्जती ना हो? हाँ जी, उठे नुकरे लग जाओ। आ जाओ भाई। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीबो-गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल के पास हैं, सुनते हैं। थाईलैंड में बंदर ने शहरी से पैसों भरा बैग छीन लिया और लोगों पे नोट निछावर करने लगा। ਲਿਆਕੂ ਬਟਕਲਾਂ ਕੇ ਬਾਂਦਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਖੋਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਓਏ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਬਾਂਦਰਾ ਕੋ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਇਤਵਾਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀਏ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਨ ਸਜਣਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਤੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ। मैंने पूछा लियाकू भट्ट से कि तुम बंदरों के फंक्शन क्यों करते हो? कहता है कि मुझे जो चपेड़े मार के मुझसे पैसे छीने ना, हो सकता है जब मैं फंक्शन करूं तो मेरे उत्ते सुट दे। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਫਿਜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਪਰ ਗੰਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। सीधा करो एक बांदर ने पर्स खो लिया। मैंने कहा ये क्या? वो कहनी बहने बहने चीजें एक्सचेंज कर ही लेती हैं। बांदरी थी या बांदर था, पहले ये डिसाइड कर ले बाबा। बाबे को बांदरा ने बड़ियां चीज़ां खोईयां। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। एक दिन मैनू कहन दिया, कहना मैं 10 साल तो केला नहीं खाता। मैं क्या वो क्यों? कहना छिलना मैं खो के बांदरा ने ले जाना। ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹਣ। ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਲਕਾ ਸੀ ਇਹ। अच्छा, इसलिए मैंने बाबे से पूछा आपकी शादी किन की तरफ हुई है, तो कहते बांदरों की तरफ। बस तुम सही कह रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜੀ। अल्बानिया के तोहम परस्त लोग गधी के दूध को कोरोना का इलाज समझते हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਲਬਾਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਬੈਠਾ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਬਾਨੀਆ 'ਚ ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਲੇਟਲੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।